Good morning students, I am Mrs. Amrita Irka and in this session we will be discussing about Akbar's 9 gems or 9 रत्न in Akbar's court. आज हम इस सेशन में अकबर की 9 रत्नों की चर्चा करेंगे जो कि अकबर के मुगल दरबार में थे। अकबर पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन इसके बावजूद भी वे कला और साहित्य के संरक्षक थे। उनके दरबार में विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ थे जिन्हें अकबर के दरबार के 9 रत्न कहे जाते थे। और अगर हम अकबर की चर्चा कर रहे हैं, अकबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं और अगर उनके 9 रत्नों के बारे में उल्लेख नहीं आता है, चर्चा नहीं होती है, तो अकबर के बारे में जानकारी अधूरी है। इसीलिए 9 रत्नों की चर्चा या उनके बारे में जानकारी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सो we see that Akbar the Great and his achievements and whatever was his policy. But if we do not mention about the 9 gems or 9 ratnas of his court, the description or the information of Akbar will be incomplete. Being himself illiterate, though he was illiterate, he was a great patronage of art and literature, and in his court were eminent personalities from various distinct fields and experts who were appointed in Akbar's court and were called 9 Ratna or the 9 gems because of their high qualities. So we'll proceed and see one by one who were the 9 gems in Akbar's court. तो हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे. So the first one is बीरबल. बीरबल जो थे वे अत्यधिक हाजिर जवाबी और वाक्पटुता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे और अकबर उन्हें कविराज की उपाधि प्रदान किया था उन्होंने. उनका बचपन का नाम महेश दास था. राजा बीरबल जो नाम था वो अकबर द्वारा उन्हें दिया गया था. उनकी मृत्यु अफगानों से लड़ते हुए हुई थी और वे एकमात्र अनुयायी थे दीन इलाही के. So we see that Birbal he played the role of court jester in the court of Akbar, and his actual name was Mahesh Das, while Raja Birbal was the name given by Akbar. He was a great singer and poet in the Mughal court of Akbar and had mastered over Sanskrit, Persian and Hindi languages. He died while fighting against the Afghani tribes. Next है तानसेन. अब हम तानसेन के बारे में चर्चा करेंगे. तानसेन जो थे वे अकबर के दरबार में प्रख्यात गायक थे और वे काफ़ी अच्छा गाते थे और इनका वास्तविक नाम था रामतनु और वे स्वामी हरिदास के शिष्य थे. वे बहुत अच्छे गायक थे और वे ध्रुपद की उन्होंने रचना की और बहुत सारे रागों की रचना की उन्होंने आविष्कार किया और उन्होंने उस पर 2 किताबें भी लिखी थी. So we see that Tansen was actually the musician in Akbar's court and is often remembered for his epic Drupad compositions, creating several new rags as well as he wrote 2 classical books. His actual name was Ramtanu and he was a disciple of Swami Haridas. Next हम देखेंगे अबुल फजल. अबुल फजल जिसका नाम हम पहले से ही परिचित हैं, वे अकबरनामा के लेखक थे और अकबर के बहुत अच्छे मित्र थे. वे शेख मुबारक के पुत्र थे और उन्होंने अबुल फजल की रचना की थी जिसे पहले ही बताया जा चुका है. So we see that Abul Fazl was the court historian while he was the author of Akbarnama and Ain-e-Akbari, and he was the son of Sheikh Mubarak. Next हम देखेंगे फैजी. फैजी अबुल फजल के भाई और शेख मुबारक के पुत्र थे. गणित की लीलावती ग्रंथ का फारसी अनुवाद उन्होंने किया था और इन्हें भी राजकवि बनाया गया था. Faizi was also a poet and brother of Abul Fazl. He was one of the Navratnas of Akbar and was the given of status of court poet by Akbar. He translated the Leelavati Sanskrit work maps by Bhaskaracharya into Persian language. Next हम देखेंगे
राजा मान सिंह के बारे में। ये राजा भगवान दास के बेटे तथा भरमल के पोते थे। ये अकबर के प्रख्यात सेनापति थे और मुगल साम्राज्य के विस्तार में इनकी अहम भूमिका थी। Raja Man Singh was the Raja of Amber and was the famous Navratna of the royal court of Akbar. He was the general in Akbar's army and was the grandson of Akbar's father-in-law Bharmal. He fought many battles, including the historic battle of Haldi Ghati against the Maharana Pratap. इन्होंने महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था अकबर की ओर से और इसमें वे विजयी होते हैं। नेक्स्ट इज राजा टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री नियुक्त किए गए थे और इन्होंने अकबर के काल में भूमि सुधार किया था जिसके लिए वे काफ़ी प्रसिद्ध हैं और इन्होंने आईन वैशाला आज्ञापत्र जारी किया था जिससे भूमि की वास्तविक नपाई की गई थी और इसके लिए वे काफ़ी प्रसिद्ध थे। Raja Toranmal was the finance minister of Mughal emperor during Akbar's reign and he was one of the Navratnas in Akbar's court. He introduced standard weights and measures and he conducted land surveys and settlement system, revenue districts and officers. This system of maintenance by Patwari is still used in Indian subcontinent which was improved by British and government of India. तो राजा टोडरमल की के द्वारा जो भी पद्धति शुरुआत की गई जिसकी उसका प्रचलन आज भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा ही एक्टेड एज एन एडवाइजर टू अकबर। मुल्ला दो प्याजा थे, वे भी वाक्पटुता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे, शौकीन थे प्याज के, अरब के रहने वाले थे और अकबर को एक सलाहकार के रूप में वे कार्य करते थे, सलाहकार के रूप में अकबर को सलाह देते थे। नेक्स्ट मुल्ला दो प्याजा वॉज एन एडवाइजर टू अकबर। नेक्स्ट इज फ़कीर आज़ियुद्दीन और वी कैन सी द नेक्स्ट वन इज़ ऑल्सो नोन एज हकीम हुमाम। तो हकीम हुमाम या फिर इन्हें फ़कीर अज़ियुद्दीन भी कहा जाता है। ही वॉज अ सूफी मिस्टिक एंड एन एडवाइज़र, यूज्ड टू गिव अकबर एडवाइस ऑन रिलीजियस मैटर्स। तो हकीम हुमाम जो थे वे भी अकबर को सलाहकार थे, वे भी अकबर को काफ़ी सलाह देते थे और ये सूफी धर्म का अनुसरण करते थे और एक सलाहकार के रूप में ये भी कार्य करते थे। ऐसा माना जाता है कि ये सम्राट की जो पाठशाला है उसके भी प्रधान थे। ही वॉज द हेड ऑफ द स्कूल ऑफ अकबर। नेक्स्ट इज अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना जो है ये बैरम खां के पुत्र थे और ये फारसी, तुर्की तथा हिंदी के प्रचंड विद्वान थे। बाबरनामा को उन्होंने तुर्की में फारसी में अनुवाद किया और तुर्की से फारसी में अनुवाद किया और इनके दोहे जो रहीम के दोहे आज हम पढ़ते हैं ये आज भी प्रसिद्ध है। इसके एक एक दोहे में एक अर्थ है, गंभीरता से अर्थ भरा होता है। सो वी सी अब्दुल रहीम खाने खाना, ही वॉज द सन ऑफ बैरम खां, वॉज द रीजेंट of Akbar. He was the trusted guardian and mentor of Akbar, known for his Urdu couplets and his books on astrology. He translated Babur's memoirs, Baburnama, into Persian language, well as he composed other books on astrology also. So in this way, we see that all of them were quite talented and they excelled इन देयर डिस्टिंक्ट फील्ड्स। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर के दरबार में प्रख्यात व्यक्तित्व के ये 9 रत्न मौजूद थे जो अकबर के सलाहकार के रूप में थे और विभिन्न पदों पर थे और इस प्रकार ये अकबर के शाही दरबार का निर्माण करते थे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। दैट्स ऑल फॉर टुडे।